Hello, you lovely children. How are you? Welcome to super cool, super amazing, super wonderful biology live session on the super amazing platform of Avanti. Today is going to be our first biology class with me, Neha ma'am. Okay, my name is Neha and I'll be handling biology for you. All right? Yes? Yeah, you want to know something more about me? Yes? So with time, you will be getting to know, right? You will know me better with time. For now, you know that I am Neha. My name is Neha and I'll be handling biology for you. All right? I stay in Hubli. Okay, I'm taking this class from Hubli, Karnataka. Though I don't belong to Karnataka, but yes, I stay in Hubli. All right, I belong to Jharkhand. Right now, I am in Karnataka and taking class for Maharashtra. All right? Yes? Cool. All right, Mahaviri. Okay, she is a girl. Thank you for letting me know. Okay. So you should know this. How are you feeling? All of you are excited to learn biology? Yes? Are all of you excited to learn biology? Class 12th biology? Ayush says yes. Raise your hand. Yes. Perfect. Awesome. Do we have any new students? Do we have any student who has joined us today? Any student who has joined us today? Gadanand says it's his favorite subject, bio. Okay, perfect. Any student who has joined us new, raise your hands. So many. All right. Okay. So see, I am going to share a link. All right. I'm going to share a link right now. All right. You need to copy that link and then fill the form. If you use that link, you can fill a form. You will be asked to fill a form. Okay. You need to fill that form. You need to fill that form. Once you fill that form, you will get registered with us. So all the notes, all videos, all technical issues will be solved. Okay, let me just post it here. Did you all receive the link? Did you all receive the link? Can you copy this link? Once you click on this link, you will be asked to fill a form. You will be asked to fill a form. Fill that form. Properly, you need to enter your number by which you are logging in the Zoom account. Okay? It asks you to enter mobile number, right? That mobile number you have to enter. Then Gmail ID, you have to enter the correct Gmail ID. All right? Those who have not filled this form yet, it is for them. Okay? Those who have joined us today, copy that link. I am again sending it. If some of you have missed it, copy this link and then fill the form after the class is done. All right. So this was the first thing which I wanted to share. Second thing, those who joined us new, you know how to use Zoom? You know how to use Zoom? So first thing what we are going to try here is, on your phone or laptop, can you see there is a video icon? Can you see there is a video icon? Video icon ko on karo. The video icon which is there, no? Turn on the video. Yes, Deepali has done it. Okay, you all are following me. Yes, good. Yeah, I can see you all. Perfect. Deva is there. Shrutika is there. Okay, now Mahavir, I have seen you also. Yes, you're a girl. All right. So, you know how to operate Zoom to some extent, right? You can do this if you understand what I'm saying. You can do this. Can we do this? Yes, Priya is doing it. Yeah, perfect. Okay. I'm going to take you through this. On the very first class also, sir has given you the instructions, right?
Already on the first day you got the instructions. Those students who joined us very new, for them it is there. See, how are you going to log in into Zoom? You need to sign in. If you have not signed in, you do sign up. What you do? Sign up. When you do sign up, this time it asks you a Gmail ID or a mobile number, right? That Gmail ID and that mobile number you have to enter in the form. Got it what I'm saying? In the form when you are filling, you have to enter the mobile number by which आप Zoom में login कर रहे हो, ठीक है? Zoom में जिससे आप login कर रहे हो, जिस email ID से, जिस mobile number से, आपको वही fill करना है form में, ओके? आप जब login कर जाओगे, sign in करोगे, sign up करोगे, फिर आप sign in कर सकते हो. Sign in करने के बाद ऐसा symbol आता है ना, अगर phone है आपका, आपके पास phone है तो ऐसा symbol आता है, right? आप इस पे क्लिक करते हो, इस पे क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन ऑडियो, उस पे क्लिक करना, आपको सब कुछ सुनाई देगा उसके बाद, ठीक है? क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो, ठीक है? आई नो यू नो इट, तभी आप सुन पा रहे हो मुझे. यस, ये ऑप्शन आएगा कॉल यूजिंग इंटरनेट ऑडियो. व्हाट विल बी द ऑप्शन? कॉल यूजिंग इंटरनेट ऑडियो. आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है? आप इस पे क्लिक करोगे तभी मुझे सुन पाओगे, अदरवाइज आप सुन नहीं पाओगे मुझे, ठीक है? उसके बाद अगर आपको देखना है कौन कौन लोग आ चुके हैं, मैं ज्वाइन की हूँ या नहीं, योर टीचर हैज ज्वाइन द क्लास और नॉट, आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करो. इस पे आपको सब पता चल जाएगा कौन कौन आपके फ्रेंड्स आए नहीं, आपके टीचर आए या नहीं आए, एवरीथिंग यू विल गेट इट हियर, ओके? सो दैट इज टू यूज टू सी कौन कौन लोग आ गए हैं. आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके देखो, आप जब पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करोगे ये सारा कुछ आएगा, ठीक है? यहाँ पे दो ऑप्शंस है ना, ये किसके लिए है? ये बोलने के लिए, दिस इज फॉर स्पीकिंग एंड दिस इज फॉर सीइंग, वीडियो के लिए. जब भी मैं आपको बोलूंगी वीडियो ऑन करने, आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? व्हेनेवर आई आस्क यू टू टर्न योर वीडियोस ऑन, यू विल क्लिक ऑन दिस, ठीक है? यू नो दिस ऑलरेडी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, ठीक है? जिसको भी समझ नहीं आया वो बोल सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा. ऑलराइट, उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ना, इन ऑप्शंस पे आप क्लिक कर सकते हो. जब मैं बोलूँ रेज योर हैंड, आप इस पे क्लिक कर सकते हो. समझ आया नहीं आया, यस नो, धीरे जाना है, फास्ट जाना है, या मोर का जो ऑप्शन है इस पे अगर क्लिक करोगे, इस मोर वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे. ये थम्स अप आएगा, ऐसे वाले आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे. आप क्लिक कर सकते हो जिस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्या है? चैट. अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे, इफ यू हैव टू आस्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कैसा फील हो रहा है क्लास पढ़ के, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या डाउट्स हो रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास, ऑल दीज यू विल बी एबल टू डू बाय चैट, ठीक है? इस पे क्लिक करने का, आप चैट पे क्लिक करोगे और उसके बाद होस्ट, मेरा नाम जहाँ पे होगा उस पे क्लिक करोगे एंड आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है? आप ये कर पाओगे तभी मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊंगी, ठीक है? मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू टू यूज दिस सो ऑफन, आपको ये बहुत यूज करना है, ठीक है? दैट इज ऑल. Alright, and this warning you should know that you should not misbehave. I know you all are very lovely children, you will not do that, but still if you misbehave you will be removed from the meeting. Alright, yes, can we all follow this? Can you all turn your videos on? Yes, yeah, can we all follow this? Yes, yeah. So whenever you have to, yes, and you all have learned it properly, you can use this or you can use the symbols which are there on your Zoom. All right, so that was related to Zoom. Any new student, you have to fill that form. These are the two things which we have to follow. All right,
Now, as you know that we are going to learn biology. Yes, I am going to take biology for you. Yes. Atharv is asking, आप NCERT पढ़ाएंगे? Ma'am, you will teach NCERT. The book which Maharashtra government gives you, that book we are going to follow since it is a boards class. So the book which you have with you, right? It has 15 chapters, right? Yes, it has 15 chapters. So that book we are going to follow. Your book we are going to follow. Some ground rules I wanted to first set. Since we all are new to each other, right? I am new to you, right? You are new to me. Yes. So we should know that the class should run in which way. Yes. So whenever I take class, I always set some ground rules for the class. Okay. The ground rule first is you should be on time. You should be on time. Can we all do it? On time, at least 5 minutes before you join the class. Can we all do this? Yes, raise your hand. Yeah, okay, you all are doing it. Perfect. Be regular to the class. Let's say you attended today's class, tomorrow's class you did not attend. Obviously, you will not get the concept, right? And after that, you cannot blame me. Yes, because you did not attend the class. Yeah. If there is any genuine reason, I understand there might be cases when there is any genuine reason. मतलब सच में कोई problem था आपको. अगर ऐसा कुछ है, तो you can skip the class obviously, but you need to inform me that ma'am I could not attend the class. आप उसको अच्छे से पढ़ो, जो doubts होगा आप मुझसे पूछो फिर, ठीक है? So try to attend all the classes, regular, be regular. Only when बहुत ज़्यादा urgency हो, कुछ ज़्यादा urgent काम हो, तभी आप छोड़ोगे इसको. All right. Most urgent work for us is what? For me is to teach and for you is to learn, right? उससे ज़्यादा urgent कुछ काम हो ही नहीं सकता, right? Now, after every class, I will ask you to do some homeworks. Yes, you all will have to show me the homework. I will ask you to turn the videos on and you will have to show the homeworks to me that you have done it. All right. So homeworks you have to keep doing every day. And these things are something which are like very, very mandatory. Discipline. You should be disciplined. Yes. And ask as many doubts possible. Don't hesitate to ask any doubts. बिल्कुल भी hesitation नहीं होना चाहिए. All right? Yes. जो भी doubts है आपको आप पूछो. All right? Yes. Be honest. The last ground rule is what? Be honest. अगर homework नहीं हो पाया, आप बोलो मैम नहीं हो पाया, ये reason था. अगर homework मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ, you should tell कि मैम एक दिन में नहीं होगा. I need some more time. ठीक है? So that is the last ground rule. Be honest. तभी we will be able to learn things properly. All right? Yes. Did you all follow me what I said? Did you all follow me what I said? Yes. Rohit, what are you doing? Can you do this, Rohit? Yeah, okay, perfect. All right. So these are the ground rules. Keep these in mind. Okay. Now, one more thing which I wanted to ask. Tell me which language do you prefer? Of course, Marathi आप prefer करोगे, लेकिन मुझे नहीं आती वो. हिंदी और इंग्लिश, इसमें कौन सा लैंग्वेज आप प्रेफर करोगे? जो भी प्रेफर करोगे आप मुझे चैट में लिख के बता दो. कैन यू ऑल डू इट? आपको बोथ? अच्छा, बोथ विल डू. हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड विल डू. यस, ठीक है. सो वी विल यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. मराठी I don't know, so you can help me out with that. I know few words in Marathi, like for girl. For girl, which word do you use? Mulgi, right? Yes. And for a boy, mulga. Yeah. So few words I know. Rest, you need to help me. All right. So I am gonna help you with biology, and you are gonna help me with Marathi. All right. Deal? Yes. Yeah. Yes.
Okay, cool. So see, this is our boards class, right? Yes, boards class. Topics you all know. You all have gone through the book. You all have access to the book. You can reply. You all have access to the book. Yes. If not hard copy, at least soft copy you have. You should have it. Yes, Dipali has it. Yeah. Others? Yeah, almost all of you have it. Perfect. So if you have gone through the book, the first page, which talks about like how many chapters are there, what all you need to study, total number of chapters. How many total number of chapters? You need to keep answering so that I feel that you are here in the classroom, right? Yes? How many chapters are there? Total number of chapter 15. Yes. We have total 15 chapters to learn. Only 15 chapters, right? Yes. So what's the first chapter which we need to learn? The very first chapter which we need to learn is this, right? Reproduction in lower and higher plants. Yes. First chapter which we need to learn is what? Reproduction in lower and higher plants. Reproduction in lower and higher plants. Yes. Gajanan is asking me, am I going to teach NCERT? Yes, it is boards class, right? What do you want me to teach? You tell me. Whatever is required for your boards, that I am going to teach. Okay? Just attend today's class and you will get to know that what I am going to teach. Right? Yes? So first chapter which you have is reproduction in lower and higher plants. Now, we are going to use some symbols. Since I am new to you, right? So you don't know like which all languages or which all symbols, sign languages, symbols which I use, right? While teaching. So what all do I use? What is this? I think most of the people know this, right? Most of you know it, right? This symbol is for what? Any man, right? It can be for any human being. Any man. Yes? And this symbol if I draw this symbol, guess. Can you guess? What is it? This symbol is for what? If this is for human being, what is this? Can you answer that? Leaf. Yeah, leaf is there. Along with that, something is there, no? I am extending it. I have extended it. Now tell me what is it? Stem. Dipali. Yes, Dipali has answered. Stem and leaf. Together, this is going to show that it is a plant. Okay? Yes. Coming to the next diagram. See what is it? ये क्या है? A bird. Right? So I may draw a bird like this. और मैं ऐसा draw करके आपको बता सकती हूँ कि ये animal है. Right? Bird is animal, right? Bird भी एक animal है. कभी-कभी ऐसे symbols I can use. तो आपको समझना है, ठीक है? कि ये तुम्हारा leaf है, ये आपका human being है, ये animal है, ऐसे symbols. क्योंकि why symbols are very important? Why diagrams are very important? Why diagrams are very important? I'll tell you why. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी को देखते हो, आप पहले उस इंसान को देख चुके हो और आप कुछ दिनों के बाद उस इंसान को देख रहे हो, कुछ साल के बाद आप उस इंसान को फिर से देख रहे हो. आप कभी ऐसा बोले उस इंसान को कि मुझे आपका नाम याद है लेकिन चेहरा याद नहीं है? ऐसा होता है क्या? Have you ever observed this, that you tell people that I remember your name but I don't remember your face? Never. तो क्या याद रहता है हमेशा? हमेशा आपको चेहरा याद रहता है, फेस याद रहता है, इमेज याद रहता है. नाम भूल सकते हो आप, लेकिन इमेज हमेशा याद रहेगा. So what we need to do always try to learn the concepts by drawing diagrams. ठीक है?
जो भी दिमाग में आए, ट्राई टू मेक डायग्राम्स, रफ स्केच बनाओ। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, राइट, कुछ नहीं होंगे, मेरे जैसे होंगे, या सो जो मेरे जैसे हैं वो ये सब ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, यस, सो दीज सिंबल्स वी शुड यूज टू मेक बायोलॉजी सिंपल, क्योंकि बायोलॉजी बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट है हमें बायो पढ़ने में, लेकिन इतना वास्ट है, दिमाग में कैसे फिक्स करें? हमें सोल्यूशन पता है, हम इमेज कभी नहीं भूलते, हम नाम भूल जाते हैं, इमेज कभी नहीं भूलते। तो वी विल ट्राई टू लर्न थिंग्स। हमेशा याद रखो इस चीज को, जब भी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, व्हेन थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आपको बहुत अच्छा करना है, राइट, बोर्ड्स में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हो सब में बहुत अच्छा करना है। तो आप क्या करोगे, हमेशा फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, यू शुड मेक फ्लो चार्ट। पूरा चैप्टर अगर मैं फ्लो चार्ट में बना दूं तो कितना इजी हो जाएगा, राइट, बस फ्लो चार्ट देखो और सब याद आ जाए। यस, ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट जहां भी पॉसिबल है, ठीक है। ट्राई टू मेक डायग्राम्स, बुक में नहीं है फिर भी बनाओ, एक पैराग्राफ ले लो, उस पैराग्राफ को पढ़ो और उसको क्या करो आप, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, एक रफ स्केच के फॉर्म में बनाओ। मोस्ट ऑफ द क्लास जो आप अटेंड करोगे मेरी, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। और एक लास्ट चीज क्या होता है हर चैप्टर में, कुछ डेटा होते हैं, राइट, कुछ कुछ डेटा होगा कि इस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, ये साइंटिस्ट ना इसने ऐसा किया था, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, डेटा हो गई। तो हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट कर लेंगे, डेटा को कलेक्ट कर लेंगे। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर एवरी सब्जेक्ट एक्चुअली, कुछ भी करना हो आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना हो, बोर्ड्स अच्छा करना हो, सब में चैप्टर को सिंपल करना है तो फ्लो चार्ट बना लीजिए, डायग्राम्स बना लीजिए, जो भी डेटा है, क्योंकि हम डेटा में कुछ कर नहीं सकते, डेटा जो है वो तो है ही, राइट। मैंने आज आपका क्लास स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड द क्लास ऑन 23rd अप्रैल, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट, आप इसको नहीं कर सकते चेंज। वी हैव टू रिमेंबर इट दिस वे ओनली दैट ऑन 23rd अप्रैल वी हैड आवर फर्स्ट बायोलॉजी क्लास विद नेहा मैम, राइट, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तो वैसे डेटा को हमें हमें सेव करके लिख लेना है, एक जगह एक बॉक्स बना लो, ठीक है, आप बॉक्स के अंदर राइट ऑल द डेटा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर। इससे क्या होगा, हमारा चैप्टर एकदम सिंपल हो जाएगा एंड बायो इंटरेस्टिंग भी होगा, इजी भी होगा। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम विद बायोलॉजी, इंटरेस्टिंग तो है बायो, देयर इज नो डाउट इन दैट, लेकिन टर्म्स हम बहुत भूलते हैं बायो में, राइट, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे लेकिन टर्म्स भूल जाओगे, इतने डिफिकल्ट भयानक भयानक टर्म्स होते हैं, तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी। ओके, कैन यू ऑल डू इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, कैन वी ऑल डू इट? यस, या, ऑल राइट, cool. So starting off with this, reproduction in plants, right, reproduction in plants, lower plant and higher plant, lower plant and higher plant. So lower plant, what do you mean by that? The topic is what, reproduction in lower plant and higher plants. What do you mean by these two terms? इसका क्या मतलब समझ आता है आपको? लोअर प्लांट एंड हायर प्लांट, मैं ऐसा बोलूं, देखो हमारा जब अर्थ फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले क्या आया था, पानी आया था ना, ओशियन था ना, ओशियन था, सबसे पहले सब कुछ कहाँ स्टार्ट हुआ, पानी में, राइट, सबसे पहले सब कुछ कहाँ स्टार्ट हुआ, पानी में सब कुछ स्टार्ट हुआ, राइट। तो पानी में तुम्हें याद है, देखते होगे तुम, ऑब्जर्व करते होगे, जहां भी पानी है वहां ग्रीन ग्रीन कलर सब कुछ आ जाता है, तो वो ग्रीन कलर क्या है, एल्गी है ना, राइट। धीरे धीरे तुम्हारा क्या स्टार्ट हुआ, लैंड बनना स्टार्ट हुआ, पानी के बाद धीरे धीरे लैंड बनना स्टार्ट हुआ, तो हमारे दूसरे प्लांट क्या डेवलप हुए, ब्रायोफाइट डेवलप हुए, ठीक है। जिसको भी समझ नहीं आया वो मुझे मैसेज करना,
ठीक है, कि मैम इसको रिपीट कीजिए ऐसे करके, ठीक है, ऑलराइट। सॉरी। देन धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा लैंड हो गया। तो हमारे पास कौन से प्लांट आए, टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स। सबने सुना है ये सब नाम, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमें जिम्नोस्पर्म्स मिला, माउंटेन्स वगैरह और बड़े बड़े प्लांट मिले। एंड जिम्नोस्पर्म्स के बाद कौन सा प्लांट आया जिससे आप फ्रूट लेते हो, फ्रूट, फ्रूट्स, कौन सा प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, कौन सा वो प्लांट है, एंजियोस्पर्म्स। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट कैसे डेवलपमेंट हुआ, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। यस। तो अगर मैं बोलूं लोअर प्लांट, लोअर प्लांट क्या होगा आपका, जो सबसे पहले आए, जिसके पास डेवलपमेंट बहुत कम था, कुछ नहीं था उनके पास, ग्रीन ग्रीन कलर जो आपको पानी में दिखता है, तो सबसे पहले क्या आया, लोअर प्लांट एल्गी। उससे धीरे धीरे डेवलप होकर आपका लोअर प्लांट ब्रायोफाइट, स्लोली आपका क्या हुआ, हायर प्लांट आने लगे। हायर प्लांट मतलब इनमें इवोल्यूशन ज्यादा हुआ, है ना। टेरिडोफाइट्स में तुम्हें रूट्स मिलेगा, ठीक है, लीफ मिलेगा, ट्रू रूट मिलेगा, ट्रू स्टेम मिलेगा, ट्रू लीफ मिलेगा, लेकिन यू विल नॉट गेट दैट इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट, यू विल नॉट गेट दैट इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट, ठीक है। उनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होता है। समझ आया, यस, ओके। तो टेरिडोफाइट से हमें थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड प्लांट मिलने लगे, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसमें पहली बार क्या आया था, सीड आया लेकिन फ्रूट नहीं आया, सीड तो आ गया लेकिन फ्रूट नहीं आया, ठीक है। फिर एंजियोस्पर्म ऐसा प्लांट आया जो सबसे ज्यादा इवॉल्व है, सबसे ज्यादा इवॉल्व है ना, सबसे ज्यादा इवॉल्व, सबसे ज्यादा डेवलप्ड, तभी हम इनको क्या बोलते हैं, हायर प्लांट, सबसे ज्यादा इवॉल्व है, ठीक है। आप क्लास 12th में आ गए तो आप सबसे ज्यादा इवॉल्व हो, किसके कंपैरिजन में, फ्रॉम क्लास 1 to 11, ठीक है। क्लास 1 to 11 के कंपैरिजन में आप ज्यादा इवॉल्व हो क्योंकि आपने ज्यादा पढ़ाई की है, राइट। तो ये इवॉल्व है, एंजियोस्पर्म्स आपका सबसे ज्यादा इवॉल्व प्लांट है। तो हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एक एल्गी हमें दूसरा एल्गी कैसे दे रहा है, ठीक है। ब्रायोफाइट, एक ब्रायोफाइट दूसरा ब्रायोफाइट कैसे दे रहा है, तो वो क्या हो गया, लोअर प्लांट्स हो गए, दे आर व्हाट, लोअर प्लांट्स। उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है लोअर प्लांट्स में। और फिर एक आपका क्या आता है, हायर प्लांट, हायर प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो हायर प्लांट में रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनरली हायर प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, राइट, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, समझ आया। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल मोड और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ आया सबको, डू दिस, गिव मी अ थम्स अप, समझा, यस, yeah, okay, yeah, I have got the responses, all right. So the chapter talks about this lower plant and higher plant, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ना है कि हमें 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो हमारा पूरा लाइफ, आवर कंप्लीट लाइफ साइकिल, कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, देखो इसको, आप ध्यान से इसको देखो, बर्थ होगा ना, ग्रोथ होगा प्लांट का, डेथ होगा। हमारे साथ भी सेम होता है, हमारा बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, हम भी मरते हैं, राइट।
बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ऐसा लाइफ साइकिल है, प्लांट हो या एनिमल हो, सेम चीजें, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, सोचो, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? नाउ वेलकम टू द सिंबल। हमारे पास पहला सिंबल मिल गया। क्या है ये? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या कर रहा है ये ऑर्गेनिज्म? यंग वंस को दे रहा है। ये ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग दे रहा है। अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करके बर्थ दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? यंग वंस बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूली बॉर्न बेबीज है, न्यूली बॉर्न बेबीज, उसको आप क्या बोलते हो? यंग वंस, या क्या बोलोगे? ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स birth to young ones. It's a process by which an organism gives birth to young ones. You can call these young ones as offspring also. कोई गलत नहीं बोलेगा, offspring बोलो या young ones बोलो, एकदम करेक्ट वर्ड है। ठीक है, yes. Now ये जो young ones होते हैं, जो बच्चे हो रहे हैं, that is similar to, it's similar to the parent or not? आप अपने पेरेंट से सेम दिखते हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। People tell you, right, that okay, you look like, you resemble like your father, you resemble like your mother. हम सिमिलैरिटी मिलते हैं हमें, राइट? तो वो भी एक प्रॉपर्टी है कि रिप्रोडक्शन से जो यंग वंस आते हैं, दैट गिव्स सिमिलैरिटी। यस, ओके, गजानन looks totally like mom. Okay, yes, thank you for sharing, Gajaanan. All right, so young ones, they look similar, right? Your brother, if you have a brother, you have a sister, they also look similar to you, right? Yes. Now कितना सिमिलर दिखते हैं? क्या वो टोटली सिमिलर दिखते हैं? नहीं, कुछ कुछ सिमिलर दिखते हैं। तो वो कितना सिमिलर दिखते हैं? अगर वो पूरा पूरा डिट्टो सेम दिखते हो, पूरा डिट्टो सेम दिखते हो, तो वो क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ यू मे आस्क दैट ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस तो एग्जैक्टली सिमिलर दिखते हैं, है ना? तो वो एग्जैक्टली सिमिलर दिखते हैं, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट? सो वी हैव फ्यू केसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आपको सिमिलर दिखेगा। इन सेक्सुअल आल्सो आपको डिट्टो डिट्टो सेम मिल सकते हैं जब वो ट्विंस होंगे, जब वो ट्विंस होंगे। when you are twins, then you look similar, right? Most of the characters, features, structures will look similar. Yes, तब आप सेम दिखोगे, लेकिन अदरवाइज वो कैसा रिप्रोडक्शन होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर डॉटर सेल्स कंप्लीटली एकदम डिट्टो सेम टू सेम दिखते हो, तो वो क्या होते हैं? वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन का? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ आया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो डिट्टो सेम दिखता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिट्टो सेम नहीं दिखता, एक्सेप्शन है उसमें ट्विंस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आई वॉन्ट यू आंसरिंग नाउ। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सोचो सोचो आप, हाउ मेनी? यस, ओनली वन, राइट? Dipali says one, Gajanan says one, Deva says one. Yes, awesome. So in asexual mode of reproduction, only one parent is involved. How many parents? Only one parent. All right. लेकिन sexual reproduction में क्या होता है? Sexual reproduction में most of the cases two, क्योंकि इनको दो gametes चाहिए। ठीक है, most of the cases two. One parent भी कर सकते हैं और two भी कर सकते हैं, है ना? अगर कोई प्लांट ऐसा हो जिसमें मेल फ्लावर भी हो, फीमेल फ्लावर भी हो, तो वो सेम प्लांट में हो जाएगा ना रिप्रोडक्शन, राइट?
तो इसमें दोनों केसेस पॉसिबल है, एक पेरेंट भी हो सकते हैं, दो पेरेंट भी हो सकते हैं। आपको चाहिए क्या? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए। ये एक पेरेंट से भी आ सकता है और दो पेरेंट से भी आ सकता है, ठीक है। अगर एक पेरेंट होगा तो इफ वन सिंगल पेरेंट इज देयर, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिंगल पेरेंट मेल गैमेट भी प्रोड्यूस करेगा और फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर दो पेरेंट है, जैसे हमारे केस में मम्मी पापा, राइट, मदर एंड फादर, तो मम्मी का फीमेल गैमेट एंड पापा का मेल गैमेट, राइट। सो मेल एंड फीमेल गैमेट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, यस। तो उस केस में दो पेरेंट, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो हमें क्या पता चला इससे कि हमें चाहिए क्या इसमें एक्चुअली? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, इसकी बहुत जरूरत है यहाँ पे। सिंगल पेरेंट भी दे सकते हैं और डबल पेरेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी दिस, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके ऑफस्प्रिंग को, उसके यंग वन को हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कैन यू ऑल से क्लोन? विच वर्ड वी कैन यूज? क्लोन। समझ आ रहा है? ऑफस्प्रिंग जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे, ठीक है, उसमें उसके जो बच्चे होंगे, यंग वंस होंगे, आप उसको क्या बोलोगे? क्लोन्स। क्या बोलोगे आप उसको? क्लोन्स, ठीक है। अब समझना ये है कि क्लोन होता क्या है। अगर आपको समझ आया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, आपको क्लोन भी समझ आ जाएगा। ये समझ आया ना आपको? देखो, आई आस्क्ड यू राइट कि वो कितना सिमिलर दिख रहा है। अगर ऑफस्प्रिंग कंप्लीटली डिट्टो डिट्टो सेम दिख रहा है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? आप उसको क्या बोल सकते हो? क्लोन बोल सकते हो। समझ में आया? आप उसको क्या बोल सकते हो? क्लोन बोल सकते हो, ठीक है। तो क्लोन होता क्या है? व्हाट इज अ क्लोन? व्हाट इज अ क्लोन? क्लोन क्या है? उनका स्ट्रक्चर सेम दिखना, राइट आयुष? स्ट्रक्चर शुड बी सेम, राइट। मॉर्फोलॉजी शुड बी सेम। स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, फेस वैसा होना चाहिए, बाल वैसे होने चाहिए, हाथ वैसे होने चाहिए, राइट। तो उसका मॉर्फोलॉजी सेम। मॉर्फोलॉजी सेम होने के साथ साथ और क्या सेम होना चाहिए? जीन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या सेम होने चाहिए? मॉर्फोलॉजी सेम होनी चाहिए और जीन भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी है ना। क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। तो एग्जैक्ट कॉपी का मतलब वो बिल्कुल सेम दिखेंगे। तो क्लोन्स क्या होगा इसमें? मॉर्फोलॉजी सेम होगा, मॉर्फोलॉजी सेम होगा, और क्या सेम होगा? जीन्स भी सेम होंगे। तो जेनेटिकली इट इज सेम एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली इट इज सेम, इसीलिए ये बिल्कुल सेम दिखते हैं। समझ में आ रहा है? गॉट इट? यस, ओके, yeah. So don't be lazy, okay? Be active. You can see me, right? I am so active. Students should also be active, right? If a teacher is active, students should also be actually more active than the teacher, right? You're younger to me, yes. Yeah, so energy should be more in you. Where is the energy? Yeah. ठीक है. Now see, whenever clone is formed, whenever clone is formed, you have asexual reproduction, right? Have you come across the term mitosis and meiosis? Let me just know. Do you know what is mitosis, meiosis? आपको पता है meiosis, mitosis क्या है? पता है तो ऐसे करने का, yes बोलने का, yes, या ओके, ठीक है। अगर पता है तो मुझे ये बताइए आप, क्लोन जब बन रहा है कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? जब क्लोन बनाना है प्लांट को या एनिमल को,
कौन सा प्रोसेस होगा? यस, ऑसम, गजानन हैज आंसर्ड इट। यस, सो कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस होगा, है ना। माइटोसिस आपका इक्वेशनल प्रोसेस होता है ना, माइटोसिस इक्वेशनल प्रोसेस, ठीक है। क्यों बोलते हैं हम इक्वेशनल प्रोसेस? नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर आपका ये कोई पेरेंट है, ठीक है, इससे अगर ऑफस्प्रिंग आता है, अगर इसमें 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 क्रोमोसोम होगा, इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम आते हैं, ऑल राइट। सो दैट इज योर माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है बताइए? व्हाट हैपेंस इन मियोसिस? जल्दी बोलो आप। मियोसिस, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, है ना। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब, अगर मेरे पास 4 क्रोमोसोम है पेरेंट के पास, ठीक है, कोई सेल है उसके पास 4 क्रोमोसोम है, तो मुझे ये बताओ कि डॉटर सेल में कितना आएगा? ये अगर मियोसिस करेगा तो कितने क्रोमोसोम आएंगे इसके डॉटर सेल में? 2 आएंगे। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम? इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है इसमें, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि कौन सा प्रोसेस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? हमेशा, ऑलवेज माइटोसिस होता है, ऑलवेज माइटोसिस होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में सोचो, मियोसिस में क्या होता होगा? इसमें तो क्लोन मिल गया, हम क्लोन टर्म यूज कर सकते हैं, सोचो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैन वी यूज क्लोन टर्म? नो, बिकॉज ऑफस्प्रिंग्स डिट्टो सेम नहीं होते हैं, तो हम उसको बस ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे, यंग वंस बोलेंगे, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करते हैं, कौन सा सेल डिवीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? कौन सा सेल डिवीजन होता है? कौन कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है, थिंक, माइटोसिस होता है, यस नो? माइटोसिस होता है, नहीं होता है? चिल्ड्रन, yes or no? Will mitosis take place in sexual reproduction? Yes, है ना। तो इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि हमें गैमेट भी बनाना होता है, हमें गैमेट भी बनाना होता है, और गैमेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कौन सा प्रोसेस चाहिए? जब भी गैमेट बनाना होता है हमें क्रोमोसोम नंबर को कम करना होता है, राइट। तो आप क्या करोगे यहाँ? मियोसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस भी होता है एंड मियोसिस भी होता है, ठीक है। गॉट इट? यस, ओके। अभी नेक्स्ट ये सोचो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है क्या? गैमेट फ्यूज करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यस और नो? आंसर मी फास्ट चिल्ड्रन, फास्ट, क्विक। होगा क्या? फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा? नहीं होगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा ही नहीं, नो। यस, निखिल हैज आंसर्ड, ऑसम, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। अभी सोचो इसके बारे में आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन ही क्यों रहा है? गैमेट बन तो रहा है इसलिए कि उसको फ्यूज करना है ना। यस, सो हियर क्या हो, गैमेट्स बन रहे हैं, इसका मतलब फ्यूजन तो होगा ही होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ऑल राइट। नाउ थिंक, कौन सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको? कौन सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है? सेक्सुअल, राइट। इट इज कॉम्प्लेक्स और नॉट? यस। और सिंपल कौन सा है? असेक्सुअल सिंपल है ना। नाउ गजानन हैज अ क्वेश्चन, ही इज आस्किंग दिस डाउट। See, I want all of you to ask doubts, okay? Ma'am, mitosis only in plant na during sexual reproduction.
ओके गजानन, यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, बट आंसर इसका नहीं है, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगे, वो प्लांट हो या एनिमल हो। हम सीखेंगे ये, यही तो हमें सीखना है, यही तो छोटे छोटे चीज है जो हमें सीखना है। दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी हैव टू लर्न। कि गैमेट जब बनेगा तो मियोसिस होगा, लेकिन माइटोसिस कब होगा? आई एम टेलिंग यू दैट माइटोसिस विल टेक प्लेस, लेकिन कब होगा? एंड इट विल टेक प्लेस बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है गजानन, दोनों में ही होगा, हमें वही तो देखना है कि कैसे होगा। ठीक है, so that is the difference between sexual reproduction and asexual reproduction। और उसी के साथ हमने ये भी सीखा कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यस, ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना, उसमें हमें यही सीखना है कि रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे हो रहा है एंड हाउ इट इज टेकिंग प्लेस इन एनिमल्स। ठीक है, यस, चलो फिर, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड class? All of you have understood? Yes? Yeah? Okay. All right, all right. ठीक है, अभी हम क्या सीखेंगे कि स्मॉलर प्लांट्स में, लोअर प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फिर हायर प्लांट्स का देखेंगे। ठीक है, तो लोअर प्लांट्स में क्या होता है, आपका एल्गी हो जाएगा, राइट, लोअर प्लांट, ब्रायोफाइट हो जाएगा लोअर प्लांट, है ना। तो वो लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, लोअर प्लांट का रिप्रोडक्शन अब हम देखेंगे। लोअर प्लांट्स रिप्रोडक्शन, ये एनिमल्स का है, बर्डिंग एंड ऑल। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स। और बिफोर वी लर्न दैट, वी कैन लर्न दीज ऑल्सो। आई वांटेड यू to learn these things also. This is not there in your book right now, okay, but these terminologies you should know. For example, we will be learning the reproduction part, but उसके पहले ये सारे terms हमें सीखना चाहिए, ताकि मैं कभी भी यूज करूं क्लास में तो आपको समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट क्या होता है? व्हाट इज एन एनुअल प्लांट? एनुअल प्लांट क्या होता है? एनुअल प्लांट, एनुअल मतलब एक साल ना, एनुअल, राइट, एनुअल एग्जाम है, पूरा कंप्लीट साल, राइट, फुल ईयर, यस। तो एनुअल प्लांट वो प्लांट होंगे जिसका वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, जिसका वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाए, एक ही साल में कंप्लीट हो जाए। डू यू नो व्हाट इज वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज? आपको पता है ये क्या है या मैं बताऊं आपको? ठीक है, सिंस इट इज फर्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन कि क्या है ये। कोई भी प्लांट होता है ना, कोई भी प्लांट, उसमें 3 फेजेस होते हैं। देयर आर 3 फेजेस, ठीक है। व्हाट आर दे? व्हाट आर द फेजेस? व्हाट आर द फेजेस? पहला फेज क्या होता है? मैं ये बोल सकती हूँ कि पहला फेज आपका क्या है? जुवेनाइल फेज। पहला फेज क्या है? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को आप क्या बोल सकते हो? वेजिटेटिव फेज। Maybe most of you know it already, but for those who do not know it, उनके लिए जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज। दूसरा फेज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। एंड थर्ड क्या है? सेनेसेंस फेज। थर्ड इज व्हाट? सेनेसेंस, सेनेसेंस फेज। ठीक है, तो नाम से पता चल जाएगा जुवेनाइल मतलब क्या, एकदम बच्चा, राइट, जुवेनाइल है ये, राइट, इमैच्योर है बच्चा, राइट। तो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज में क्या होगा? इसमें प्लांट या एनिमल मैच्योर नहीं होंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे? ये इमैच्योर है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा? सोचो, वो मैच्योर हो जाएंगे, राइट।
दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाएंगे, राइट, ग्रोथ ज्यादा होगा, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, ये सारे एज आएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, कभी ना कभी तो हमें बूढ़ा होना ही है, राइट, तो सेनेसेंस, हम एज, हमारा एज ज्यादा होता जाएगा, धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस होगा, एंड क्या होगा, स्लोली वी विल डाई, डेथ, है ना। तो ये बर्थ हमने पढ़ा ऑलरेडी, लाइफ साइकिल जो है, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, इस बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ को आप डिवाइड कर सकते हो 3 फेज में। क्या 3 फेज है वो, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंस। जुवेनाइल में क्या होता है, इनमेच्योर, आप नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते, रिप्रोडक्टिव फेज में आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, मेच्योर होते हो, सेनेसेंस में आप बुढ़े हो चुके हो, ठीक है, एजिंग हो चुका है, आप बुढ़े हो चुके हो, डेथ होगा, ठीक है, यस, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सी, एनुअल प्लांट में क्या होगा, उनका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इन 1 सीजन आपको फ्रूट मिल जाएगा, ठीक है, जैसे वीट हो गया, एक ही सीजन में आपको गेहूं मिल जाता है, चावल मिल जाता है ना, तो वो एनुअल प्लांट हो गया, उसका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट हो जाता है एक ही सीजन में। बाइनियल क्या होगा, सोचो फिर, इजी ना, बाई मतलब 2 और नॉट, तो बाइनियल का मतलब क्या होगा कि इसका वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज 2 सीजन में कंप्लीट हो रहा है। ये कितने सीजन में कंप्लीट हो रहा है, 2 सीजन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मूली हो गया, कैरेट हो गया, है ना, मूली, कैरेट, रेडिश, कैरेट। अभी पेरेनियल में आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पेरेनियल। पेरेनियल में क्या होता है, उनका वेजिटेटिव फेज बहुत सालों का होगा, ठीक है, बहुत लंबा होगा, और रिप्रोडक्टिव फेज बार बार वो दे सकते हैं फ्रूट, या फिर एक ही बार फ्रूट देंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो पेरेनियल वेजिटेटिव फेज बहुत लॉन्ग होगा, और रिप्रोडक्टिव फेज, एक बार वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाता है तो हमें फ्रूट्स मिलते हैं। अभी सोचो, यू हैव सीन एनी प्लांट जो आपको एक ही बार फ्रूट देते हैं, एक ही बार फ्रूट देते हैं, राइट, जैसे बैम्बू, बैम्बू आपको बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद बैम्बू आपको क्या देगा, फ्रूट देगा, है ना, राइट। लेकिन कोई ऐसा प्लांट सोचो जो आपको हर साल फ्रूट दे रहा है। अभी मैंगो का सीजन है ना, उसका वेजिटेटिव फेज बहुत लंबा चला, राइट, आप जब छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने उस प्लांट को लगा दिया आपके घर पे, अब आप बड़े हो गए तो आपको फ्रूट मिल रहा है, राइट। तो वेजिटेटिव फेज बहुत लंबा था, और अब क्या हो गया, जब भी सीजन आता है, व्हेनेवर सीजन कम्स, आपको मैंगो मिलता है, यस। दीपाली, इज इट योर फेवरेट, इट्स माय फेवरेट एज वेल, यस, मैंगो। सो पेरेनियल का मतलब हुआ कि वेजिटेटिव फेज बहुत लंबा, रिप्रोडक्टिव फेज जब आएगा वो फ्रूट देंगे आपको, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज अगर वो सिर्फ एक ही बार फ्रूट देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, अगर एक ही बार फ्रूट देते हैं तो हम उसको मोनोकार्पिक बोलते हैं, और अगर वो बार बार फ्रूट दे सकते हैं एवरी सीजन में, हम उसको पॉलीकार्पिक बोलते हैं, मोनोकार्पिक फ्रूट एंड पॉलीकार्पिक फ्रूट, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया बैम्बू, एंड ये एग्जाम्पल, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, इट इज स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। ये क्या कब फ्रूट देता है, हर 12 साल में, एवरी 12 ईयर्स, ठीक है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। आपको बस समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि मोनोकार्पिक आपको एक ही बार फ्रूट देगा, और पॉलीकार्पिक जब भी सीजन आएगा आपको फ्रूट देगा। समझ आया सबको, क्या पढ़ा हमने आज, हमने क्या पढ़ा आज, हमने कुछ ग्राउंड रूल सीखे, राइट, यू नीड टू फॉलो दिस, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, ओके। उसके बाद हमने क्या सीखा, लाइफ साइकिल, बर्थ, ग्रोथ, डेथ। उसके बाद फेजेस ऑफ
लाइफ, राइट, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन सीखा, क्या टर्म होता है, इसके टाइप्स सीखे, राइट, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस सीखा। ठीक है, यस, राइट। नाउ Gajanan, I have answered your doubt. See this now, you are asking this, right? ये क्या लिखा है? It is Strobilanthes kunthiana, short form में लिखा था मैंने। ठीक है, ये वेजिटेटिव लंबा होता है और रिप्रोडक्टिव जब भी सीजन आते हैं तब वो रिप्रोड्यूस करके फ्रूट देता है। ये पूछ रहे हो क्या गजानन? सी रिप्रोडक्शन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज जब भी सीजन आएंगे तब वो फ्रूट देंगे, डिपेंडिंग ऑन वो एक बार देते हैं या बार बार देते हैं। अगर वो एक बार देते हैं तो मोनोकार्पिक, अगर वो एवरी सीजन देंगे तो पॉलीकार्पिक। ठीक है गजानन, समझा? ओके, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी लर्न इन टुडेज क्लास। ऑल राइट, सबको समझ आया क्या? सी आई एम लॉन्चिंग अ पोल ऑन द स्क्रीन। ओके, कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? अगर समझ में आया आपको, अच्छा लगा क्लास, तो प्लीज आप आंसर करो ऑन द स्क्रीन। स्टार्ट आंसरिंग। पोल दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? कैन यू सी द पोल ऑन द स्क्रीन? यस, नो? ओके, so we are going to meet tomorrow, right? Same time. Thank you. We are going to learn now in detail the sexual reproduction in plants. Okay, all right then, thank you so much. Bye bye, take care. Hope you enjoyed the class. Yes, bye bye. Yeah.